Welcome to Honest Life Coach, and thank you so much. I asked you people to help you, and give me some ideas where to start. You very generously gave your comments. Most of the ideas were beautiful. I'm so happy that I got some really good ideas. One thing that I'm going to talk about today is the response to a question from my subscriber Aditya. He asked, start some series for young parents, maybe since there are too many things and options and noises, what to consider and what to ignore for kids under 15. So, Aditya, thank you so much for this one. The number one thing that you can do in order to make your children's life better is not to take their education seriously. If they are bright, they will effortlessly glide through the system. But if they are not that bright and you just keep pushing them, they are going to ultimately fail, and during that process they are going to put you in debt. So my particular hatred comes from the point that I've been a victim of this system. I'm somebody who took schooling very seriously, double Capricorn, you see. Everything was serious in my childhood, but in my 40s I am a headache to the system. So back in our days, if you were not a good student, you had no bloody right to live. We were supposed to ace all our tests and do well in our studies so that we can get a good career, good money, good job, good life. But things turned out to be very different when I realized what was happening. So, barring English and math, nothing else came in handy. Nothing else ever helped me much in the real life. A part of what I learned my MBA did help, but not much of it. So, I was surprised by the utter uselessness of what the books were teaching us. So they don't teach you legal, they don't teach you your rights, they don't teach you how to file your taxes, they don't teach you how to manage your money. They just teach you वो कोई तो गांधी जी गए थे वहाँ पे नमक उठा लिया था. भाई नमक लिया चीनी लिया, हाउ डज दैट अफेक्ट माई लाइफ? वो क्वेश्चन बस यूपीएससी में कहीं आ जाएगा शायद. या फिर वो महादेवी वर्मा की गाय या हामिद का चिमटा, ऑल दैट नॉनसेंस. या वो थार डेजर्ट में साहब कुछ उगता नहीं है, और गोबी डेजर्ट में कुछ नहीं होता है, और वो फलाने का मेडिटेरेनियन वाला है. जस्ट यूजलेस फैक्ट्स जो आज की डेट में आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ गूगल हैव बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, जिनका कोई सिर पैर नहीं है लाइफ में. I would happily share 80% of all my education for one book of Mahabharata, which taught me how to live, which taught me what dharma is. So school taught me a lot of useless facts, a lot of useless stories, and extreme amount of obedience. स्कूल इसलिए नहीं बने कि बच्चे एनलाइटेंड हो, स्कूल इसलिए बने कि बच्चे ओबीडियंट रहें, ब्लाइंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी. So they created a slave out of me who was very good at taking orders, right? From bosses to clients to parents to teachers. I was a very good corporate slave citizen who would never question anybody in authority. Boss is right and boss is always right. This is what schools program you for. Thankfully, by the time my children went to school, मेरा awakening हुआ, and I thankfully never took their school very seriously. And I am one of those rare fathers who have a decent relationship with the teen children. So I always say that stand by the child, do not stand by the school. आपका बच्चा अगर स्टडीज में मीडियोकर, इट्स ओके, आपका ही बच्चा है ना. रिमेंबर कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर, ही वॉज अ वेरी गुड फादर ऑल्दो ही हैड अ रॉटन सन, बट फिर भी उसको एक बढ़िया लाइफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी उन्होंने. मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता कि मूर्ख है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा लड़का ही इंपॉर्टेंट. ठीक है, थर्ड डिविजनर है तो भी मेरा बच्चा है यार, आई विल हैंडल हिम. वहीं वो रामाधीर सिंह वाली पेरेंटिंग बूमर्स ने करी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उनको जलील करते रहे, एंड में क्या हुआ, बेटे ने बाप का काम लगा दिया. सो डोंट बिकम दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स हु आर हेटेड बाय देयर ग्रोन चिल्ड्रन. वो बच्चों का फॉल्ट नहीं मानता मैं पेरेंट का फॉल्ट मानता. And thankfully, in modern days, millennials are far better parents than boomers. At least they are beginning to see some truth and they are being kinder to their children. Uh, but still, parents, particularly the mothers, are very, very focused on the schooling. मैं वही कहता हूँ, अगर देश की माताएं स्कूलों को सीरियसली नहीं लें, ये लोग 2,000 रुपये महीने में घर आके पढ़ाएंगे, नमस्ते भी करेंगे. सो मदर्स ने स्कूल्स का हवा बना रखा है और उसको स्टेटस सिंबल बना रखा. मेरा बच्चा इस स्कूल में जाता, मेरा बच्चा स्कूल में जाता, एंड दे पुश देयर चिल्ड्रन लाइक क्रेजी. तू स्कूल नहीं जाता, तू ये नहीं करता, तू एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं करता,
तेरे नंबर कम आ रहे। अरे भाई आपका बच्चा एवरेज है तो आपका, ब्रिलियंट है तो आपका, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है वो करने दो। और उसके बाद में प्रॉब्लम आती है द फैसिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट्स, आई कॉल देम द साइंस ऑर्फन्स। मैंने कभी भी किसी नॉन साइंस वाले बच्चे को डिप्रेशन में नहीं देखा, बारिंग द सीए फाइनलिस्ट बच्चे। मैंने कभी आर्ट्स वालों को बल्ले बल्ले करते देखा, कॉमर्स वालों को बल्ले बल्ले करते देखा, साइंस वाले मैंने सबसे ज़्यादा दुखी देखे। तो ये जो इंडियन पेरेंट्स का फेटिश है साइंस को लेकर के, इसको हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन भी सफ़र करेगी। पुराने ज़माने में शिक्षा पद्धति होती थी, उसमें गुरुकुल होते थे, देवर लाइक द फाइनेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ टुडे। और उसमें जो गुरु होते थे वो बहुत सीजनड और एनलाइटेंड होते थे। तो एक मिनट के लिए एज्यूम कीजिए कि साहब एपीजे अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, ये लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, दैट वाज रियल एजुकेशन। और वो हर बच्चे के हिसाब से अलग होता था। युधिष्ठिर अगर फिलॉसफी में अच्छा तो उसको शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, अर्जुन तीरंदाजी में अच्छा तो उसको आर्चरी पढ़ाई जाएगी, भीम गदा युद्ध में अच्छा उसको वो सिखाएंगे। ये नहीं कि सबको एक छड़ी से हाँक दो, ये हमारे स्कूल्स में हो रहा है ना। हैविंग सेड दैट, मैं अपने कुछ टीचर्स का बहुत आभारी हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल मेरी इंग्लिश टीचर आशा यादव मैम। आई एम द कम्युनिकेटर टुडे बिकॉज शी मेड मी वन। मेरे कॉमर्स टीचर अरुण सर, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर एंड अ फ्रेंड फिलोसफर गाइड। कुछ मेरे और टीचर्स जो मुझे लेटर लाइफ एमबीए के दौरान मिले, स्पेशली नीरज सर, जो ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाते थे और हमको भी ट्रेन करते थे इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, रियल जीनियस ऑफ अ मैन। बाकी सब वुड जस्ट गो थ्रू द मोशंस, किताब में ये लिखा हुआ यही है, बस समझ लो, स्यापा मुकाओ। अब उनको भी आप क्या कहो, बिकॉज इस मुल्क में टीचिंग इज नॉट एन एस्पिरेशनल जॉब। बेस्ट ऑफ आवर माइंड्स इन दिस कंट्री ग्रो इनटू ब्यूरोक्रेसी वेयर दे क्रिएट ऑल दोज लूप्स एंड रेड टेप्स टू स्टाइफल द कॉमन पर्सन। तो वो तो स्लेव मास्टर्स बना दिया हमको। उसके बाद में द रेस्ट ऑफ द ब्राइट माइंड्स दे गो टू द कॉरपोरेशंस एंड डिवाइड स्कीम्स के साथ इनको डेप्ट ट्रैप में कैसे रखना है, इनका कंजम्पशन कैसे चालू रखना है, हमारे प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज रखना, और इन लोगों को कैसे डिल्यूजनल रखना। दैट्स अ पिटी। सो हमारे बेस्ट माइंड्स हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। दैट इज वाई आई से इंटेलिजेंस हैज टू बी वाइज, विदाउट विजडम इंटेलिजेंस कैन बी वेरी डेंजरस। हम किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, बट best minds go to corporations and bureaucracy, and teaching is the less desired option. And most of these school teachers are overworked, underpaid and exploited. तो वो बेचारे क्या करेंगे? I don't blame them. But the future of our children, the minds of our children is being handed over to a bunch of overworked, exhausted teachers. और schools भी, they will spend big on their ACs, they will spend big on their buses, infrastructure बहुत फूफा होगा, टीचर्स को सैलरी नहीं देंगे, तो वो रोट लर्निंग और धक्केशाही यही सब चलेगा। The point here is the schools do not teach you how to think, they teach you what to think. The course is designed to make you a non-thinking rote learner, all obeying citizen, so that you will never question those in power. You will never question your political masters, you will never question your bureaucratic masters, you will never question your corporate masters. You would do as you are told, you will pay up your taxes and shut the hell up. और साल में एक दो बार उनके जयकारे भी कर दोगे आप। So, system is rigged to create slaves. Please do not let your children become slaves. मैं दो पेरेंट्स का एग्जांपल देता हूँ। एक पेरेंट टिपिकल देसी पेरेंट है, बच्चे को मार पीट के साइंस पढ़ाई, उसकी एजुकेशन पे खर्चा किया, पहले उसके ट्यूशन फी दी, स्कूल फी दी, फिर आईआईटी एंट्रेंस पे खर्चा किया, फिर इंजीनियरिंग स्कूल की फीस दी। अब इंजीनियर तो बेरोजगार होगा ही, तो भाई अब उसके आगे अब उसको एमबीए भी करवाना है, फिर एमबीए की कोचिंग का पैसा दिया, फिर एमबीए की कोचिंग फीस दी। अब वो जो है 50 लाख का कर्जा लेकर के अपने सिर पे, और अब वो वर्कफोर्स में आएगा जहां उसको शायद कोई जॉब मिल जाए। 50,000 बड़ी हद, तीर मारा तो 1 लाख, और उसके बाद में वो आदमी 70 घंटा काम करेगा, क्योंकि कॉरपोरेट तो उसकी हड्डियां चबाना चाहती हैं, एंड ही इज एन ओबीडियंट स्लेव। और उसके साथ में वो 3 घंटा ट्रैफिक में लटक 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 के जाएगा। महीने में हफ्ते में 5 दिन काम करेगा, 2 दिन थोड़ा घूम फिर लेगा, कपड़े वपड़े धो लेगा, ये उसकी ज़िंदगी है। कंपनी से कमाएगा, बैंक का एजुकेशन लोन उतारेगा,
पीजी का किराया देगा या घर का किराया देगा, और कुछ बचेगा तो बेचारा कुछ खा पी लेगा। अब इसके अगेंस्ट एक बच्चा है जो बीए थर्ड डिविजनर है, उसके बाप को बता दो मेरे बच्चे का कख नहीं होना है, बीए थर्ड डिवीजन है। उसने कोई लंबी चौड़ी फीसें नहीं दी, उसने कोई फॉरेन एजुकेशन नहीं दी, उसने कोई आईआईटी एंट्रेंस नहीं दिया, उसने कोई एमबीए की फीस नहीं दी। उसने 4 पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे के नाम पे एक 500 गज का प्लॉट डाला, और जब तक बच्चा बड़ा हुआ कर करा के उस प्लॉट की पेमेंट करके उसके ऊपर एक पीजी डाल दिया। अब वो जो बच्चा लाख रुपए महीने में इतनी घिसाई करा रहा, वो इस पीजी में बैठ करके 25, 30, 50 हजार रुपया दे रहा होगा। और ये बालक जिसने कख नहीं किया जिंदगी में, जो थर्ड डिवीजन बीए है, ये महीने का 3, 4 लाख इजीली कमा रहा होगा। सो दोनों में से भैया बेहतर बाप और लकी बेटा दूसरा कॉम्बो है। दे आर द वन हु यूज द सिस्टम अगेंस्ट इट, हु अंडरस्टूड द सिस्टम हाउ इट वर्क्स। वो बाप बचपन में समझ गया था मेरे बच्चे की ये कैपेसिटी है और मुझे इसका फ्यूचर सिक्योर करना, बजाय इसके कि इसको मार मार के मैं आईआईटीएन बना दूंगा। हमारे कोटा में ये बहुत होता। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एजुकेशन कंपनी है, टेल्स मी अबाउट इट। माँ बाप इतना हैरास करते हैं बच्चों को, मतलब वो अ, किसी एक टेस्ट में फेल होते हैं तो पेरेंट्स को मैसेज जाता है कोचिंग सेंटरों से, अब मेरा बस चले मैं इनको सब सारे कोचिंग सेंटर्स को लीगल करवा दूंगा, हम सो सिक ऑफ दम। फिर वो बच्चे का बाजा बजाएंगे। कोटा में कोई वजह है कि हर पंखे में स्प्रिंग लगना कंपलसरी है? लानत है ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स पे। शेम ऑन दोस टीचर्स, एंड सबसे बढ़ के शेम ऑन दोस पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ में ये कर रहे हैं। आपका बच्चा है, आपने संभालना भैया, उसके घर और प्रॉपर्टी और किसी फ्यूचर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, ना उसको ये आईआईटी एमबीए के रट में डालो। वो ब्रिलियंट होगा तो खुद से निकल लेगा, और अगर वो एवरेज भी है तो भी आपका ही बच्चा है, आपने ही उसको सपोर्ट करना है। सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग द सिस्टम एक्सप्लॉइट योर सिस्टम, stand by your child, use the system against itself, make your child a winner। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये करना, बिकॉज जो वक्त आ रहा है कॉरपोरेट्स खून पी लेंगी और एक पॉइंट के बाद जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल होगा। ट्रेन योर चिल्ड्रन फॉर द रियल वर्ल्ड, डू नॉट मेक कॉरपोरेट स्लेव्स आउट ऑफ them। Stay awakened, remember wisdom is the answer। I'll see you in the next one। Do let me know your thoughts on the comment section। God bless।